know, Elena, you can't, but it's all right. I can speak or call you when I have to speak to you, but we will mix up. I know there are other ladies at the back, so we will mix up in both languages, English and Urdu, because I know some of the speakers can't speak much English. Can I welcome you all on behalf of APPG on Third World Solidarity? Dave Anderson, who is the chairman, is in Kurdistan today. He is speaking on human rights and peace in Baghdad. So he left last night and he will be there for a few days, so his apologies. On behalf of him and our vice chairman, Lord Ahmed is here, Lord Ahmed Afradram, and we all know Lord Ahmed. I think I wouldn't say much more about it, but he is the people's Lord. He is no Lord of Lords, but he is the people's Lord. Whenever you are in difficulty or trouble, you just call him and he will deliver. So I think it was the same even tonight. And I'm very pleased that Elena is here and Khalid Mahmood is on his way, Member of Parliament from Beripah, and he has to go early because he's not feeling well and he was all day here. So I will request first of all Lord Ahmed to recite Tilawat al-Quran Pak, and then I will invite him to say a few words. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank you very much. Now you have just seen that Lord Sahib is not only Lord and Muslim, but he can recite Quran in a really good Quran. Thank you very much. Now I will invite you in a minute. First I want to invite Zafar Khan, the president of PPA, who has been supporting us for many years. I tell you, I got involved into this thalassemia awareness a few years back, and the reason was one of the journalists from Jung called me and he said there is a young girl who is facing thalassemia difficulty, and we went to Zafar Khan Sahib and he told me all about Kashif Iqbal thalassemia centers in Pakistan. I think since I have met Mr. Muhammad Iqbal, his wife, and now I have met their daughter Maryam, I think the work they are doing is adorable. And I think this shows today that if anything is being led by women, that cannot be unsuccessful. It has to succeed because the women are the best representative. I think, Lordship, you will agree with me that they are mother, they are sister, and they are the best campaigner. So I'm very pleased to welcome you all here this evening. And can I invite Zafar Khan to speak on what is thalassemia and what is our mission. Zafar Khan, sir. Your Excellencies, Lord Ahmed,
Very distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Very good evening. I'd just like to, just very briefly, we didn't want to go into the technical details of what thalassemia is. So I just want to just explain what thalassemia is, how our mission is started, and where we are now. Thalassemia is a genetically transferred disease, which is, it's not contagious, you can't catch it from one to other. It's because the genes are transferred from mother and father into the offspring, and because the families which marry each other in close relations, this is where mostly the problems are. Iqbal Bhai will explain what are those families mainly where the problem is more there. I'm going to not touch upon those things which Iqbal Sahab, I know what he's going to say. But basically I'm just going to say that if our blood is completely clear and we don't have any problem thalassemia-wise, then if I can represent that person like this, and if we are carrier, then thalassemia can be two types, minor and major. Minor is the one where there is no symptoms of problems. And what is the problem? The problem is the child, when it's born, cannot make its own blood. So that means they are deficient of hemoglobin. From the age of 2 or 3 or even younger, blood transfusion starts, and they have to carry on blood transfusion the whole life. You can imagine the cost is very high in Pakistan, the countries where they can't afford, children die before they reach age of 12, 13, 14. One such story you will hear from Mr. Iqbal. So if most people who are not carrier, they are like that. Those who are carrier, let me represent them by this way, that they don't have any symptoms of thalassemia, but they are carriers. But if two such carriers, like men and women, marry each other, then there is 25% chance. If two people like that marry each other, then there is 25% chance that their offspring, their child, would be fully blown thalassemia major patient. So when they are thalassemia major, life is really not comfortable. You will see in a movie, in a clip shortly, which Mariam has brought from Pakistan, how the mothers and children suffer, and their lives not very comfortable at all. So what's the treatment? There is no cure for this disease. The only thing we can do is to keep giving infusion of blood, and the frequency starts, we start with less and then more. In the case of Kashif, which I'll tell you in a minute what happened. So you start giving blood. When you're giving blood into the body, the other problem happens that the iron which is in the blood start accumulating. And it's the iron which is toxic, reaches to a toxic level, and that kills a child. It's about 1.5%, 20 crore आबादी है पाकिस्तान की, about 1.5% are thalassemia carrier. So the only way to stop is we need to know who the carriers are and ask them not to marry each other. And we're trying very hard, and I hope we've got two parliamentarians here, and they will support us
asking, pleading, requesting Pakistan government to make this a law that before marriage in Nikahnaama, the test should be there. So people will know whether they should marry or two carriers should not marry. So when the blood infusion is done, iron level has gone very high. So what do? It reaches to a toxic level. There is an infusion called Desferol or other chelating. So we need to give something to take the iron out of the body and take it out of the body. And this is done by a slow release pump. There is a pump which you have to tie to a child's body. Imagine a child of 2, 3, 4 years old having a pump tie up into the tummy, and infusion is happening over a period of 12 to 15 hours. Okay. And that pump was very expensive. Iqbal Bhai will explain to you. Very expensive, about what was it cost? £1,000, and now it is built in Pakistan for 4,000 rupees. 4,000. Yeah. It was 150,000 rupees in Europe, and in Pakistan they have built it for 4,000 rupees. Now we are able to supply to most people, most children who are there. So I think this is a short story. Now, mission started when Kashif Iqbal, 18 years ago, tomorrow, 15th of March, Kashif Iqbal came here. Iqbal Bhai will tell you the story afterwards. He came and he was introduced to us, and we tried very hard to support, but his life was very limited. And what happened to him? That resulted in a formation of thalassemia, Kashif Iqbal Thalassemia Care Center, and that center now is flourishing. We managed to spread this all over Pakistan. There are 16 centers. I think Iqbal Bhai will give you a full story. So that's a short story about thalassemia. I think I want to leave the story of Kashif Iqbal for Haji Iqbal Saab to tell us. That's why I'm sorry I stopped you, because it is a very painful story, and obviously when we speak we become very emotional. But I'm very thankful to Khalid Mahmood, who is not feeling well, as I said. But can I ask him to present a award? And sorry for changing the protocol and changing this, because he has to leave, he has to reach to Birmingham, and I will tell why he is traveling to Birmingham. Can I ask Raja Sahab, should we be, I'll pick up myself, share that award. It is here, it is here, it is already here. This award is given by Thalassemia, Kashif Iqbal Thalassemia Center in Pakistan, to the support of Lord Ahmad, which has given over the years to this cause and many other causes. And can I ask Khalid Mahmood to present it to Lord Ahmad and then say a few words, and then he's free to leave. 1 minute. 1 minute. Thank you very much. Thank you, Mr. Akhtar. It's a huge privilege for me to be able to present this award. I know that the huge issues that people have with thalassemia. I have some constituents who are suffering from thalassemia. And in the UK, they have real issues when they're suffering from this. The blood transfusions that take place and everything else that takes place, the quality, the issues, the quality of life that they have. So you can imagine what happens when somebody in Pakistan has this. Multiply it by 1,000 times, and you get the perspective of what happens to those people, particularly young people.
I've had a friend who's been thalassaemic in this country for the last 20 years and has gone through that. The growth gets stunted. You still think that they're a lot younger than they actually are, and actually produces a lot of difficulties for them, barriers for them in growing up, getting the independence and support that they want. And I really want to say a word of appreciation to Lord Nazir Ahmed, who has been at the forefront at most of these issues. Whenever there's an issue that really needs a champion, Lord Ahmed is always there to take that case up. I'm grateful that he does that, as I've not been able to do some of the work. I always regard him as my elder brother in the House of Lords, who is able to take up some of the very, very serious issues that have a real effect on people's lives. And he's always done that, irrespective of the way that he might be treated by officials, by people in position in Pakistan. Irrespective of that, he's always fought for the underdog. I think it's brilliant for me, an honor for me to be able to present you this award. Lord Ahmed, you deserve a lot more than this, but this is a gratitude from the Thalassemia Association. Thank you very much. Thank you very much, Khalid Mahmood. So can I ask Mariam Beti to show us a little bit work, what they are doing in Karachi and what is the thalassemia? Thank you. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum and good evening. This is Mariam Asif from Kashif Iqbal Thalassemia Care Center. Today I am going to show you some activities of Kashif Iqbal Thalassemia Care Center in Pakistan. Here are some slides. This is the first thalassemia awareness ambulance. Now, there are three people who have been mentioned. First of all, could you give them a big hand, but let me first ask them to stand up. Riyaz Bhatti Sahab, Zeba Bakhtiar, Muhammad Asghar. Of course, please do a little exercise, it will be good. Give them a big hand. Thank you very much. Thank you. And now, can I ask, first of all, Riyaz Bhatti to come up and receive the award from Lord Ahmed Saab. Then can I ask Mariam Bitia to come up and get the award from Lord Ahmed Saab. Iqbal Sahab, aap मैं announce करते जाता हूँ. Thank you. Sorry. Riyaz Bhatti Sahab once again. Riyaz Bhatti Sahab हैं जिन्होंने अपना घर वहाँ लाहौर में मिस्री शाह में अपना घर डोनेट किया जिसमें 40 कमरों का अस्पताल और थैलेसीमिया सेंटर काम कर रहा है. इन्होंने अपनी जेब से बनाया है. So let's give it a big hand. Thank you very much. 1 लाख यहाँ पता है सब लोगों को कि 40 कमरों का अस्पताल बनाने में कितना खर्च होता है. रयाज बट्टी साहब, मरियम बेटा आप आइए अपना अवार्ड. जी आप खड़े रहिए. Thank you. Can I ask Kaniz Iqbal, Begum Sahib? This is the whole family, and you will hear in a minute the work they are doing in Pakistan. Ji. Thank you, beta. Bati sahab baithiye. Aaiye ji Begum. Thank you very much. See, that proves behind every successful man there is a room. Can I now invite our dear Lord Ahmed, to say a few words and speak to the audience from Thalassemia. Association International and Third World Solidarity for organizing this event. It's a pleasure to see so many friends, so many sisters and brothers here, and I have never seen so many sisters from the High Commission in any of the events in London. So a round of applause for them for coming. And you are right to come here to support this cause, because मैं आपको बताऊं 3-4 साल पहले
मैं पाकिस्तान था, बाग से, डिस्ट्रिक्ट बाग से रावलाकोट जा रहा था, तो मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया, बल्कि 5 साल पहले शायद, और उसने कहा जी कि अल-अक्सा थैलेसीमिया ट्रस्ट हमारा है रावलाकोट में, हम चाहते हैं कि आप इसको विजिट करें। I didn't know what thalassemia patients are like. What is it that they are suffering? जिस तरह डॉक्टर साहब ने, मेरे भाई जफर साहब ने एक्सप्लेन किया है, एक्चुअली यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। कोई भी बीमारी हो, जब तक आपको खुद नहीं लगती या आपके किसी बच्चे को, इमेजिन करें। मैं अपनी बहनों को ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप बहनें जिनके बच्चे हैं, मेरे तो पोती पोते भी हैं, वो बच्चे इतने इनोसेंट बच्चे, जब वो खून की वजह से रोते हैं, उनके जो बदन है, उनके जिस्म वो दर्द करता है, क्योंकि दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन ब्लड, एंड वो ब्लड की जब कमज़ोरी होती है, वो जब ख़त्म होता जा रहा है, तो वो रोते हैं क्योंकि दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ। वो माएँ जो उनकी देखभाल करती हैं, जस्ट इमेजिन द पेन। आई मीन, मेरा पोता जब उसको चॉकलेट नहीं मिलता तो जब रोता है तो मैं कहता हूँ नहीं, एक नहीं 4 ले लो, ठीक है। और इमेजिन के पेन, वो दर्द। And I really sort of made my commitment that inshallah, wherever I can, there are many causes in Pakistan. There are many causes in Pakistan where you can help. But this is one of the great ones. And if I can say, my brother Muhammad Iqbal and his family, that for you, all I can say is that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Khairun nasi man yanfa'un nas." Best amongst mankind is one who brings benefits to others. वो लोग जो दूसरों के काम आए। सच्ची बात ये है, मुझे एक बार किसी ने कहा जी कि मैं अपने बच्चे तो यूनिवर्सिटीज़ में भेज सकता हूँ, मैं दूसरों की जिम्मेदारी क्यों लूँ? तो मैं बड़े अचानक मैंने कहा जानवर भी अपने तो पाल लेते हैं। बल्कि मैंने इससे भी जानवरों के नाम लिए जो नहीं यहाँ पे नहीं ले सकता। मैंने कहा वो भी अपने बच्चे पालते हैं। यानी इंसान तो वो है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की केयर करे। तो प्रिवेंशन इज वन थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर अल्लाह करे अगले 20-30 सालों में अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए जिसको ये केयर हो कि इंसान किस तरह मरते हैं, अल्लाह करे कि उनके बच्चों को भी लगे जो हुकूमत करते हैं, ताकि उनको पता चले कि कौन बच्चे, आम लोगों के बच्चे किस तरह सफर करते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी मैं एक सेमिनार से आ रहा हूँ, ये बच्चे जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान डिस्कस हो रहा था मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। जो स्पीकर थे वो भी मेन स्ट्रीम के, और वो कहते हैं कि रूलिंग क्लास जो पाकिस्तान की है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ना तो उनके बच्चे लोकल स्कूल्स में पढ़ते हैं, ना ही वो लोकल हॉस्पिटल्स इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि वो लोकल पाकिस्तान का पानी भी नहीं पीते, वो तो पेरिए पीते हैं। जो विस्की नहीं पीते वो पेरिए पीते हैं। और वरना क्योंकि उनको क्या पता कि आम लोग, गरीब लोग वो किस तरह सफर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इकबाल साहब और आपकी फैमिली और दूसरे जो लोग आपके साथ पार्टनर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, रियली आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। इतनी खूबसूरत जो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं एंड फ्री ऑफ चार्ज। ये अल्लाह आपको और हिम्मत दे, बल्कि अल्लाह आपकी ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो सदका है, ये जो हिम्मत है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और आपको और हिम्मत दे। और दूसरे लोग भी यहाँ पे just want to say a few things that in the United Kingdom, British Muslim charities say raise something like 50 million pound a year, between 50 to 100 million a year in the United Kingdom, and they send it to many poor countries including Pakistan. In fact, most of those who raise money, they are from Pakistan, but I'm not so sure whether all money goes to Pakistan. I'm not so sure whether all money goes to the deserving people, क्योंकि उनकी या तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं
या समटाइम्स कोई एक दो ऐसी भी चैरिटीज हैं जिनके गोस्ट किस्म के, जिस तरह आपके पाकिस्तान में गोस्ट स्कूल्स हैं, इनके भी गोस्ट एक्सपेंसेस हैं जो पता नहीं चलता। तो आई वुड रादर गिव मनी टू चैरिटीज जो ट्रांसपेरेंट हैं, जिस तरह आपकी चैरिटी है, जो लोग अच्छे काम करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। एंड यू नो there are ways that people do fundraising, and let me just remind people that this telethon that happens on the channels, private channels, it is free of charge. People should not pay for that. Those who charge, they actually break law. Ofcom rules are very clear that nobody can charge for these telethon fundraising, but they do. So I think one should try all of them and put a request in that this year we want to raise funds on your channel. See if they allow you, and if they don't, give me the names and I will report them to Ofcom, and I will make sure that Charities Commission and Ofcom are aware that these are fraudulent and these are the type of people that मैं तो बल्कि ये भी मेरी बहन कहता हूँ कि चैरिटीज, ये कितने चैनल्स हैं, इनकी फैक्ट्रियां नहीं हैं। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े लोग हैं जिनके जिनके टीवी चैनल्स हैं। मैं यहाँ पे जियो है, दूसरे दुनिया टीवी है, एक्सप्रेस टीवी है, जो बड़े जितने चैनल्स हैं उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं। यू कैन सी वेयर द मनी हैज कम एंड वेयर दे हैव इन्वेस्टेड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनका पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, तो वो आपके ज़कात के पैसे से ही वो अपना चैनल चलाते हैं। और वो लोग जो ये नहीं टूटी हुई टोयोटा करोला चलाते थे, आजकल वो लैंड क्रूजर्स और मर्सिडीज चलाते हैं। तो उससे वो लोग जो छोटे से वो टेरेस मकान में रहते थे, आजकल डिटैच मकानों में रहते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल से भी पता चलता है। आई से दिस इवन ऑन टीवी चैनल्स, यू नो, व्हेन आई एम डूइंग माय इंटरव्यू, दैट वी नीड टू बी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट दीज थिंग्स। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अच्छे लोग जो काम अच्छे करते हैं, उन लोगों को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। और सच्ची बात यह है कि जो गलत करते हैं, कोई भी हो, वो लॉर्ड नजीर को बेशक उसकी बड़ी तारीफें करें, चाहे वो कितने भी बड़े हो, चाहे मुल्क का सदर क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। मैं समझता हूं कि हमारा हक बनता है कि उनको सामने खड़े करके कहें कि आप झूठे हैं, आप करप्ट हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Lord Saab. And can I say, before Iqbal Saab is our main speaker, and after that 2-3 words, and then you're free to leave, can I tell you that thalassemia and minor thalassemia, Zafar Iqbal Saab has said, I am a thalassemia card carrier. So minor thalassemia is not a sickness. The sickness only becomes when it becomes the major thalassemia. So minor is no problem. We are requesting, and I have invited last time, if you remember, a minister of Pakistan, and he promised that he will go and raise it. And there are senators who are trying to raise this issue in Pakistan. I hope our other friends will speak to their representatives and ask them to raise it in Pakistan, whether it is a provincial assembly or national assembly, that we should have a law, and law is very simple. Have a blood test before you marry. And it is happening in Iraq, in Saudi Arabia, in Britain, and everywhere. In Britain even, they test the child when he or she is 12 weeks in the womb of the mother. So on 12th week, they test it. So in Pakistan, why can't they test only to marrying couple? Just test it. And if they are minor carriers of thalassemia, tell them you will live very good life, but don't marry each other. That's all. This should be a law, and we should put it in the books of the law in Pakistan. And I hope that future government, after the new election, which are hopefully happening in May or June, we will press them that it should do it, because they have promised it many times with us, and I have campaigned for it. Can I now ask our main speaker and Iqbal Saab? Iqbal Saab Urdu में बात करेंगे, and I will translate some of it afterward. लेकिन इकबाल साहब जो हैं, जैसा पहले बताया गया है, ये अपने बेटे को यहाँ लाए थे जिसकी उम्र 14 या 15 साल थी, और वो 16 साल की उम्र में 15 मार्च 1996 में यहाँ फौत हुए थे, यहीं पे
वाल्थम स्टो में वो दफन है और इनके अकलौते बेटे थे, ये अभी आपको बताएंगे। लेकिन इकबाल साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 मिनट से लंबा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल सकते हैं 2 घंटे, इनकी तो लाइफ इन्होंने दे दी है इस काम के लिए। लेकिन आइए आपको सुनते हैं इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब लॉर्ड नजीर साहब का, मुश्ताक साहब, जफ़र साहब, तमाम आदमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरे 2 बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिनको मैं शायद कब्र तक ना भूलूँ, कादर अजीज़ साहब यहाँ आए हुए हैं और मुजीबुर रहमान साहब। इन्होंने एक ऐसी बुनियाद डाली थी जिससे मैंने सीखा था। जब मैं काशिफ को यहाँ ट्रांसप्लांट के लिए लेकर आया था, तकरीबन 90 लाख का खर्चा था, और लंदन आया तो सबसे पहले मुजीब भाई ने मुझे, छोटा सा घर था, मुझे जानते भी नहीं थे, और उन्होंने अपना घर दिया कि जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता आप इस घर में रहेंगे। आज आए हैं, मुझे खुशी होगी। जिनके प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ मुख्तसर, जैसे मुझे कहा गया, बड़ा मैं 3 मिनट में भी बात कर सकता हूँ, 2 मिनट में भी। काशिफ का आप जो काफ़ी लोगों को पता है कि मैं 1996 में लेकर आया था उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। काशिफ को थैलेसीमिया मेजर था, उसको जब वो पैदा हुआ था उसको 2-3 महीने के बाद ब्लड लगना शुरू हो गया था। काफ़ी डॉक्टर को, आपको 80 में काशिफ पैदा हुआ, 1980 में 1980 में पैदा हुआ, और 3 महीने बाद उसके जिस्म से खून ख़त्म हो गया था। तो डॉक्टरों को दिखाया कि जी नॉर्मल होमोग्लोबिन जो है 12-13 होना चाहिए। काशिफ की जगह जिस्म में 3 और 4 था। काशिफ को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा फ़ौरन ब्लड लगा लें, ब्लड लगा लिया। 1 महीने बाद फिर ब्लड ख़त्म हो गया, फिर ब्लड लगाया। इस तरह 5-6 मरतबा ब्लड लगने के बाद पोजीशन ये आई कि हम परेशान तो होंगे। उस टाइम हम यंग थे बिल्कुल, 22 साल का मैं, 17-18 साल की मेरी वाइफ, और ये एक नई मुश्किल हमारे लिए आ गई कि भाई वो 30-32 साल पहले, तो आज भी पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है, 32 साल पहले क्या हाल था। ब्लड लगाते गए, डॉक्टरों से पूछा भाई 8-9 मरतबा ब्लड लग गया, ये क्या माजरा है। फिर डॉक्टरों ने हमारे मखसूस टेस्ट कराया, टेस्ट करा के मुझसे कहा, मेरी वाइफ को बुलाया, हमें बिठा के कहने लगे कि आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर है, ये कोई आपको बीमारी नहीं है। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वालदों को था, ये जीन्स है, जरासीम नहीं है। वालदों को माइनर था तो नाना नानी को था, ये मुझ तक वो जीन्स आ गए। वही जीन्स मेरे वाइफ तक गए। हमारे आपस में शादियों का रवाज बहुत है, और वाइफ भी माइनर, बजाय हमें तो कुछ भी नहीं है, हम आपके सामने सेहतमंद हैं। 30-32 बोतल मैंने ब्लड दिया है, तो मैंने मर्ज को नहीं फैलाया। मगर अब हम दोनों माइनर की जब शादी हुई तो मेरा बेटा जो थैलेसीमिया मेजर का पैदा हुआ। अब डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं कि जब तक आप दोनों मियाँ बीवी जिंदा हैं और ये बच्चा जिंदा है, इसको मुसलसल खून देना होगा। अभी तो 1-1.5 महीने में चढ़ रहा है, फिर एक वक्त आएगा तो इसको हर 10-15 दिन में भी चढ़ेगा। आप मुल्ला मौलवी के पास जाएँ, हकीम के पास जाएँ, होम्योपैथिक के पास जाएँ, चादरें चढ़ाएँ, कुछ नहीं होगा, बस ब्लड लगाएँ। खैर वक्त गुजरता गया, ब्लड लगता गया, हम भागदौड़ भी करते रहे। माँ बाप थे ना, एक बेटा था, ये अल्लाह की मुश्किल में फंस गए, मगर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, शायद अल्लाह ने हमसे काम लेना था। काशिफ 13-14 साल का हो गया, और एक वक्त ऐसा आया उसको महीने में 3-4 बोतल ब्लड लगता था। और एक वक्त ये भी आया कि उसको इतनी एक हालत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जब वो 14 साल का था, 9th क्लास में पढ़ता था। तो इतनी हालत कि ना उसकी सांस आती थी ना सांस जाती थी। उसको अस्पताल के बाहर एक मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ मैं नमाज में पढ़ के और मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह, एक हम लोग दुआ करते हैं अपने माँ बाप के लिए या माँ बाप अपनी औलाद के लिए, अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता कि इसको उठा ले। तो वो वक्त जब ऐसा आया तो मैं रो रहा था, शायद ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, दुआ मांग रहा था। तो मैं जब दुआ करके अंदर आया तो डॉक्टर बुशरा खड़ी हुई थी, कहने लगी कि आप इतनी ज़ोर से रो रहे थे कि राह चलते हुए आदमी भी रुक गए थे, वो भी दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दुनिया में कहीं इसका इलाज होगा, किसी जगह तो इसका इलाज होगा। आखिर ये इतना बच्चा मेरा 14 साल का हो गया, इस तकलीफ में, कहने लगा इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये इटली में या लंदन रॉयल फ्री हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ हो सकता है। खैर अल्लाह ने दुआ सुन ली, काशिफ को मौका मिला, वो दोबारा खड़ा हो गया, फिर स्कूल जाने लगा। फिर जब मैंने यहाँ से रब्ता किया कि भाई कितने का ट्रांसप्लांट हो गई 1994 में, तो उन्होंने बताया सर तकरीबन 90 लाख रुपये चाहिए। 90 लाख पाउंड, 90 लाख, हाँ 90,000 पाउंड पाकिस्तानी, 90 लाख रुपया। अब 90 लाख आप अंदाजा करेंगे सर 94 में कितना बड़ा अमाउंट था, आज भी बड़ा अमाउंट है। खैर एक कोशिश की, बड़ी तकलीफ था, हिस्ट्री है, बल्कि मैंने किताब रखी हुई, इसमें पढ़िएगा। तो मैंने उसको जो है 1-1.5 साल की कोशिश के बाद काशिफ को मैं इटली ले जाने में कामयाब हो गया। जब उसका इटली लेके पहुंचा
और सबसे बड़ा मरकज़ है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। उसके टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों ने कहा साहब ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं तो सारा खर्चा कर रहा हूँ। उनका वजह खर्चे की नहीं है, वजह सिर्फ ये है कि इसके बॉडी में आयरन बहुत बढ़ गया है। अब आपके हमारे जिस्म में जो आयरन है 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट है 160। वो काशिफ के जिस्म में क्योंकि बार बार हम ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड के साथ ही आयरन आ रहा है, तो वो इतना ओवरलोड हो गया, इतना बढ़ गया कि 160 के बजाय 7700 आयरन था। यानी उसके नाखून खत्म होने लगे, उसके जबड़े बढ़ गए, दांत खराब होने लगे, खोपड़ी बढ़ गई, तो उनका ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाए, पाकिस्तान ले जाओ। और मैंने कहा या अल्लाह इतनी दूर में आ गया, पाकिस्तान कैसे ले जाऊँ? फिर मुझे पूरी दुनिया में ले जाने की इसकी इजाज़त थी। एक तकलीफ तो इसकी ही है, मगर मैं इसको फिर लंदन ले आया। अब लंदन में कोई नहीं, अजीज़ नहीं, रिश्तेदार नहीं, बस हम पेंडुओं की तरह सूटकेस में तवे तक मग्गे तक भर के ले आए जी, बच्चे के इलाज के लिए दुनिया में जा रहे हैं। मेरी 2 बेटी, मैं, वाइफ और काशिफ। यहाँ आए तो किसी ने एक मुजीब भाई का एड्रेस दे दिया, इनके भाई मक्के में मिल गए, उम्र के दौरान लंदन जाना, शायद आपकी मदद हो जाए। इनको कॉल की, इन्होंने कहा मुझे भूला तो नहीं है मगर मैं आ जाऊँगा। ये बंदा इन्होंने हमसे वहाँ से एयरपोर्ट से अपने घर लाया, रखा, तो काशिफ की ट्रीटमेंट तक हमारा साथ भी दिया। बहरहाल हम यहाँ से यहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको इंजेक्शन लगेगा डिस्फोल आयरन कम करने का, और बहुत स्लो लगना है। वो फर्स्ट टाइम में इंजेक्शन देख रहा हूँ इटली में। 15 घंटे सुई रोज उसके पेट पे लगी रहती, और ये 1-2 हफ्ते नहीं लगना था, 5-6 साल तक मुसलसल डेली इतवार की छुट्टी के बगैर इंजेक्शन लगेगा। खैर साहब नई तकलीफ शुरू हो गई। अब उसको उन्होंने जवाब दे दिया, अब मैं लंदन आ गया। अब इंजेक्शन कैसे खरीदूँ? डिस्फोल इंजेक्शन बड़े महंगे, 76 पाउंड के 10 इंजेक्शन आते थे और 1 हफ्ते के लिए। वो 76 पाउंड के इंजेक्शन, जफ़र साहब से रब्ता हुआ, जफ़र साहब ने कहा भाई इसको कोई पैसा नहीं लूँगा, ये मैं दूँगा अपने पास से। ये भी मुझे नहीं जानते थे। ऐसे ही अल्लाह ने वसीला बना दिया। बहरहाल काशिफ का सिलसिला चला, आयरन निकलता रहा। अब एक वक्त ऐसा आ गया तो उसको खून बहुत तेज़ी से लगने लगा, 4 बोतल, 5 बोतल, 8-8 बोतल महीने में खून। आप तसव्वुर करेंगे कि 3 महीने का काशिफ था, उसको खून लगना शुरू हुआ, और हम खुद 20-21 साल के थे। उसको दौड़ते दौड़ते 4-8 बोतल ब्लड लगा उस बच्चे को। क्या हम पे गुजरती थी और क्या हम उस बच्चे पे गुजरती थी। फिर 15 घंटे इंजेक्शन लगाया। अब उसको एक बार यह है कि उसको इंजेक्शन भी लग रहे, मगर उसको खून जल्दी जल्दी लगने से इसका आयरन बहुत बढ़ गया। इस कदर आयरन बढ़ गया था कि आप समझें कि 150, और मैं तो 7000 की बात कर रहा हूँ, उसका 11,000 पे आयरन चला गया, 11,000 पे। इन बच्चों की जिंदगी तो तकलीफ में गुजर जाती है, हमारी जिंदगी भी तकलीफ में गुजर गई। यहाँ आए हमारा कादिर अजीज जैसे लोग, मुजीब भाई जैसे लोगों ने ताउन भी किया, करोड़ों के लोग खा भी गए, मगर इसकी जो मौत थी काशिफ की, वो बहुत तकलीफ वाली थी। 11,000 आयरन पे मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा। उसकी आंख नाक से मैंने खून के धार निकलते देखे। बहुत तकलीफ होती है। 16 साल का हो गया, या अल्लाह इतना कुछ करने के बाद और ऐसी मौत हो गई। ना वो तड़पा, ना चीखा, ना चिल्लाया, बस रात को 3 बजे का 15 मार्च का दिन, तारीख में नहीं भूल सकता। वो वक्त था तकलीफ वाला, गुजर गया। काशिफ के जनाजे पे हमने एक ऐद किया था, उसको जब यहाँ दफनाया कि अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे परवरदिगार कि मैं पाकिस्तान से ही नहीं, कि मैं पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इस मर्ज का खात्मा करूं। ऐसे काशिफ क्यों पैदा हो जिनकी जिंदगी अजाब हो जाए? कौन लाएगा 90 लाख रुपये? उसका क्या कसूर था, वो पैदा हो गया। उसको 8-8 बोतल ब्लड, 15 घंटे सुई लग रही है।
बहरहाल हमने जो अहद किया था, मेरे पास तो कफन दफन के भी पैसे नहीं थे, वापसी का किराया भी पाकिस्तान का नहीं था। जफर भाई हैं, जमशेद मलिक साहब बैठे हुए हैं, नईम खिदर साहब थे, इन्होंने सारा बंदोबस्त किया। कादर अजीज साहब, इनकी बेगम बैठी है, आप यकीन नहीं करेंगे, पता है रेजगारी कहीं से लेके आते थे जमा करके कि आपको जरूरत पड़ेगी। वो मुश्किल वक्त था बहुत ज्यादा। जब मैं पाकिस्तान गया, वहाँ अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है, बेइंतहा मुश्किल काम है। समझ नहीं आती थी कहाँ से काम शुरू करें, कितने लोग थे। फिर मैंने स्टार्ट लिया, बरात करना था। लोग कोई मुझे दीवाना कहता था, कोई पागल के बेटा मर गया, पागल हो गया। कोई बात नहीं, वक्त गुजर गया। मैंने सर्वे किया कितने लोग माइनर हैं पाकिस्तान में, तो पता चला कि साहब थोड़े बहुत माइनर नहीं है, वहाँ तो 1.5 करोड़ के करीब माइनर है पाकिस्तान, 18 करोड़ में से। मैं सोचता था 5-10 लोग, 5-10 हज़ार मेजर के बच्चे जिनको ब्लड लगता है। आपको अफसोस होगा सुन के कि 360 बच्चे जिनको यहाँ ब्लड लगता है, इंग्लैंड में 360, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। हमें कितना बड़ा काम करने की ज़रूरत है, हम तो बहुत पीछे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग करें तो क्या करें। काशिफ को क्यों नहीं सहूलत मिली, वो पंप मैंने क्यों नहीं देखा, वो इंजेक्शन मुझे क्यों नहीं मिले मेरे बेटे को। फिर हमने यहाँ पे एक सर्वे किया, भाई इस मर्ज को कैसे रोकें। आप देखें इंग्लैंड में, यूरोप में, जर्मनी में काफ़ी बड़ा अर्सा बहुत बच्चे थे, इटली वगैरह में, वहाँ की आवाम, मीडिया, डॉक्टर, पार्लियामेंट्री सब बैठे, भाई इसको क्या करें। कैसा शादी से पहले टेस्ट को लाजमी कर दें, बस इंशाल्लाह ताला मर्ज खत्म। आज 13-14 साल से ये बच्चा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का, और हमारे यहाँ जुल्म देखें, 5-6 हज़ार बच्चे हो रहे सर हर साल। आपको अफसोस होगा सुन के कि वहाँ पे किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में थैलेसीमिया सेंटर का वार्ड ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और आज काशिफ जिंदा नहीं है, आज 15-16 हॉस्पिटल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बात नहीं है। 2 इन्फ्यूजन पंप जो जिंदगी इन बच्चों की, जावेद मियादाद ने मुझे लंदन में दिलवाया 913 पाउंड का। जमशेद साहब, जफर साहब बल्कि इनके सामने ये गवाह हैं। जावेद मियादाद कहने लगे मैं आपको बहुत पंप दिलाऊंगा। जब उन्होंने देखा 900 पाउंड का पंप आ रहा, उनका नहीं भाई इतने महंगे पंप कैसे दिलाऊंगा मैं। मैंने कहा 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख पंप चाहिए। 2 पंप दिला के वो ठंडा हो गया। फिर मैं पाकिस्तान, जब मैं काशी की बर्ची की वापस गया, मैंने कहा अपना पंप बनाऊंगा मैं। और हमने कोशिश की, लाड साहब, हमने 99 में वो पंप, आप हैरान होंगे कि जर्मनी, इंग्लैंड की किसी कंपनी ने ऐसा पंप नहीं बनाया, हमने पाकिस्तानी 4000 रुपये में बना लिया। ये दुनिया का कारनामा था हमारा। और इसमें तारड़ साहब उसमें प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस टाइम डॉक्टर कदीर खान को भी कोई अवार्ड मिला था, मुझे भी कायदा में अवार्ड दिया था उस पंप पे। दुनिया का बड़ा काम था। उसके अंदर आज 10 बच्चों के पास पंप नहीं था सर, 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पंप दे दिया। आज मेरे बच्चे, लोग कहते थे 10, 15, 5 साल, 6 साल में मर जाते हैं थैलेसीमिया मेजर के बच्चे। आज मेरे बच्चों के आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए इस पंप के बाद, उसके बाद। और आज माशाल्लाह शादियां हो गई इन बच्चों की, इनके बच्चे हैं। कितना बड़ा ये काम था। मेरे पापा के 2-3 मिनट की एक वो है, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, ये 4 मिनट की है टोटल की। एक मोहलिक मर्ज है। Thalassemia is a fatal disease for which no permanent cure is yet available. Medical science can only try to prolong the lives of such patients. This disease is transferred to children at the time of the birth to the parents. This is also called thalassemia major. घर में हम सबको, मैं बल्कि लाड साहब से भी पिछली दफ़ा भी हमने एक मीटिंग हुई थी कि मेरे कहीं इतनी सहूलतें नहीं है किसी जगह पर भी जो हमारे सेंटर्स दे रहे हैं। हमारे नहीं, सबके सेंटर हैं। वो कश्मीर से, आपके जहलम से, खारिया से, गुजरात से हमारे सेंटर पिंडी वाले पे ब्लड लगाने आते हैं बच्चे। इंजेक्शन कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पाकिस्तान में 253 रुपये का एक इंजेक्शन है, कैसे लगाएगा गरीब? मुमकिन नहीं है। पूरे यहाँ इंग्लैंड में हर जगह फ्री है सिवाय पाकिस्तान के, वहाँ में सियासत से फुर्सत नहीं है। जिंदगी है इस पंप की। 4000 का पंप है, हम सब मिलके चाहे हम कर सकते हैं। तो मैं लाड साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमें चाहते हैं कि हम इसमें आप लोग वहाँ की हुकूमतें आपकी बल्कि आपके तो कदमों में आके पड़ जाती हैं, आप उनसे कहें खुदा के लिए असेंबलियों से बिल तो मंजूर करा दें, जो सेंटर चल रहे हैं उनको सहूलत ही दे दो, चलो अपने ना सेंटर खोलो, हमें ब्लड बैंक दे दो, इंजेक्शन दे दो, पंप हमने रिसर्च किया, इतना बड़ा दुनिया का काम किया, आज तक किसी ने नहीं पूछा। यहाँ होता तो शायद नोबेल प्राइज के लिए रख भी देते नाम हमारा, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। आज इतना बड़ा हम जो काम कर रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे पहले सबने मिलकर मैंने इनसे सीखा था कि मेरे साथ इतना ताउन किया, आज लाशारी साहब को मैं थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने ये 5-6 प्रोग्राम ऐसे बड़े बड़े इन्होंने थैलेसीमिया कराए, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दूसरे मीडिया के लोग भी बैठे हैं, इन्होंने एक लिखा कुछ यहाँ पर पाकिस्तान में टाइम नहीं है, वीना मलिक की तो बहुत सारी न्यूज़ दे देंगे, ऐसा डेविड बेकार चीज़ें बहुत सारी दिखा, इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, इतने बड़े काम के लिए बच्चे हुए जा रहे हैं। मेरे कभी सर आप पाकिस्तान है, मेरे सेंटर आए, आप रो पड़ेंगे कि यार बच्चों को, मुझे याद है काशिफ की ने वैन नहीं मिल रही थी एक दफ़ा, ना सर पे ना हाथ पे ना टांग पे, टांग से चीरा दे के उसकी वैन निकाल के ब्लड लगाया था, पर एक दफ़ा थोड़ी था, उसको फिर आना था 15 दिन के बाद। तो ऐसे 5-6 हज़ार बच्चे हम सब रोक सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत के, हम फंड की बात भी नहीं करते, अल्लाह हमें वो भी दे रहा है, मगर आप वो उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वो खुदा के लिए हम सब मिलके, आपकी तो एक बड़ी सर बात है और आप किसी भी को भी खड़खड़ा सकते हैं। कश्मीर में जैसे आपने कहा कि वहाँ पे एक वो थैलेसीमिया सेंटर में, वहाँ के बच्चे भी वहाँ आते हैं, उनको डिस्पोल नहीं मिलता, पंप नहीं मिलता, वाइड पंप हमारे पास है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा, इससे पूरी दुनिया में एक काम, ये टेस्ट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में यहाँ काशिफ थैलेसीमिया ने शुरू किया, और आज आप हैरान होंगे कि एक दिन में 1-1.5 हज़ार टेस्ट पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुए जो हमने पाकिस्तान के अंदर किए हैं। वो करते पूरे गांव को फारिग करते हैं। जैसे मरीम ने गाड़ी दिखाई थी हमारी, ऐसी गाड़ी अल्लाह करे ऐसी 20 गाड़ियों को मेरा टारगेट है, एक गाड़ी हो जाए। पंजाब में कोई गाड़ी नहीं है, रियाज भट्टी साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने पहला पंजाब का सेंटर बनाया। अब एक साहब जहलम में बनाने के लिए सामने आ गए, साहिवाल का एक ने कहा रही है, डॉक्टर असगर साहब बैठे, इन्होंने रहीया खान के, मैं बच्चों को देख के मरीम ने, हमने टेस्ट की पूरी टीम गई, मरीम ने मुझसे कहती बेटी मेरी कि अबू आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। मैं हैरान था, उसके टेस्ट का रिजल्ट उतना खौफनाक था। हम कहते हैं कि 10% 5% थैलेसीमिया माइनर के लोग हैं। रहीया खान खानपुर में सर जो मैंने कैंप लगाया 50 to 60% लोग माइनर। हम कहते हैं 10 से नीचे HP होमोग्लोबिन जाएगा, बच्चे को ब्लड लगाएं, हम लड़ते हैं, हमें ब्लड नहीं मिलता, बच्चे मर रहे होते हैं, लोग ब्लड नहीं देते। खैर अल्लाह मसले को हल कराता, मगर ये जो हो रहे हैं, खानपुर का रिजल्ट क्या था, हम कहते हैं 10 से नीचे ब्लड नहीं लगना चाहिए। इनके यहाँ 2 और 1 HP के बच्चे थे जो पता नहीं सैकड़ों मर रहे हैं, सैकड़ों पैदा हो रहे हैं। सर प्लीज़ कुछ करना है आप लोग को, हम सबको करना है। थैंक यू। Just very briefly, Iqbal has given his personal story. His son died on 15th of March 1996 at the age of 16. If he was alive, he would have been 33 today. And he told the story of his when he was 3 months, the blood infusion started and ended up at 15th of March 1996. And now he's running 16-17 center with the help of his wife, his children, 4 daughters. Is it right? 4 daughters? 2 बेटी, 2 daughters, yeah, Shmaila, and they are both. So really, I think everybody and anybody who can help him raise the awareness, ask people to change the law in Pakistan, I think it will be very helpful. Can I request, first of all, I think Mujibur Rahman is sitting here and we wouldn't let him go without receiving an award from Lord Ahmed Saab, Iqbal Saab and Zafar Saab for his work and the way he treated, and he was unknown to Iqbal Bhai and their family, and he put them in his house with his wife. Can I ask your wife to come as well if she's here? Or she's not here, Mujib Bhai? Wife is not well. Okay, that's fine. Come up. Give him a big hand, please. जानते भी नहीं थे मुझे, तो ये जिस तरह से उन्होंने उस वक्त, वो मुश्किल वक्त था। Thank you very much. Can I now ask Iqbal Saab himself to receive an award from Lord Saab for his work? These awards are too small for you, but it is just a recognition. Iqbal Saab.
बेटा ऊपर आ जाओ मरियम बेटा। ये मेरी अगर मिसेस और ये PPA जफर साहब की तरफ से इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई फील्ड दे। मुझे तो अल्लाह पाक ने बड़ा अवार्ड से नवाज दिया कि आज आपके साथ हूँ मैं। और ये एडमिन मेरे साथ सुबह आ जाती है, रात तक। बेटी मरियम की शादी हुई तो दूसरे दिन कैम्प में बैठी नहीं थी। मरियम बेटे जरा वहाँ से बेगम जरीना वाजिद का अवार्ड लाइए। और कैन आई आस्क मिसेस सैयद जुल्फकार गर्देजी साहब टू कम एंड रिसीव इट on behalf of Mrs. Zarina Wajid. And while she is coming, can I tell you that in the audience, Mrs. Mehr Khan is sitting, whose son died of the same sickness, and she organized a meeting on 3rd of this month in Walthamstow. Then there was another meeting organized by Rafiq Bhatti Sahab, Begum Sahab. आप आइए बेगम जरीना वाजिद साहब जो 15 तारीख को वहाँ there is a meeting in House High Commission on 15th. There is a small ticket for it, £15. Anybody can buy it from me, Zafar Sahab or Iqbal Sahab, because we are serving food there, and it will go to the thalassemia centers in Pakistan. Ji. And then can I ask Mr. Khawer Aziz Sahab to come and receive me? Khawer Aziz Sahab. And the final award for Zafar Khan Sahab. Thank you. Zafar Sahab. Khari Sahab. Thank you. Thank you. Sir, please, Thank you. sir, देखो। Thank you जी। Thank you very much. मैं सच्ची बात यह कि डिजर्व नहीं करता हूँ। ये अगर मेरा नाम है ना हो तो किसी और को दे दें। नहीं आप अपने ऑफिस में लगाएंगे और मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह। सर एक कोई सरवरा आपके पास आएगा तो आप उन्हें बताएंगे। Can I ask everybody to pick up one of the books, which is the Iqbal Saab story written, but it says that अगर आपका कमजोर दिल हो तो ना पढ़िएगा, दिल बड़ा मजबूत होना चाहिए। The third and final thing is there is a young forum tomorrow for overseas Pakistanis. They are discussing it at 6:30. The right of overseas Pakistani. I think we have the right to press the government to make a law that Pakistan, everybody before marrying should be tested. Can I request Lord Ahmed to say a few words, and then Zafar Sahab, and we will conclude it. Lord Sahab. Well, first of all, can I say thank you to Mushtaq Bashari Sahab, really, and round of applause for him for not only sharing this with me. आपने देखा है कि जब इकबाल साहब अपने बेटे की बात कर रहे थे और वो जो तस्वीरें आप देख रहे थे उन बच्चों की, जस्ट इमेजिन, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये वैसे उन बच्चों को देख के भी दिल जो है वो रोता है। सच्ची बात ये है, दुख होता है। लेकिन इमेजिन कि वो मेरे बच्चे को, मेरे पोते को, मेरे घर के किसी फर्द को ये बीमारी अल्लाह ना करे ऐसे लगे, जिनको लगी है, when they run out of blood, मैं ये कहता हूँ जो पेन है, जो दर्द, उनको जब वो रोते हैं, जब वो बिल्कुल खून ख़त्म होना शुरू होता है तो उनकी वो कमज़ोर होते हैं, फिर वो उठ नहीं सकते, फिर वो जो तकलीफ़ में होते हैं और जो फैमिली उनको बर्दाश्त करती है। ब्लड बैंक्स की ज़रूरत है पाकिस्तान में, यानी आज़ाद कश्मीर में तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने थैलेसीमिया यूनिट मुजफ्फराबाद में ऑफिसर, और वो भी इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर किसी को जॉब देनी होती है, क्योंकि वो जॉब मिल गई लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ फैसिलिटी हो, अगर जॉब ना भी हो, किसी को लेस एजुकेटेड को भी अगर वहाँ पे लगा दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
बहरहाल वो यानी अवेयरनेस बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने जो जिम्मेदारी मेरी लगाई है, अभी तो इलेक्शन शायद हो जाए या ना हो, लेकिन कुछ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर। जब भी जो चेंज आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा या यहाँ पे कोई हेल्थ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का कोई भी बंदा आएगा तो इंशाल्लाह आई विल रेज देयर अवेयरनेस इन रिलेशन टू दिस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Can I ask everybody to raise your hands and give a big clap to another person who doesn't want to be announced his name, but there is a award for him which he will take very quietly. Give him a big hand. Zafar Khan Sahab just concluded. Thank you very much everybody for coming. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। आपकी मौजूदगी यहाँ एक सपोर्ट है और इस बात की गवाही है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। इतना सीरियस इशू है, लाड साहब ने भी बताया, इकबाल साहब ने कहा, पाकिस्तान प्रोफेशनल एसोसिएशन इंटरनेशनल फील वेरी प्राउड टू रिकॉग्नाइज सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय इकबाल भाई, इनकी वाइफ बेटी मरियम और इनकी पूरी फैमिली। हुआ ये था कि जब काशिफ इकबाल का इंतकाल हुआ तो उसकी लाश थी मस्जिद में, हम लोग नमाज पढ़ने वाले थे और इकबाल साहब मेरे गले से आके लगे और कहने लगे कि काशिफ जिंदा है। तो मैंने सोचा कि ये जज्बात में है तो ये ऐसी बात कर रही है, लेकिन वो जज्बात में थे ज़रूर, लेकिन ही मेंट इट। वो उनका मतलब ये था कि इस काशिफ जैसे बच्चों को हम जिंदा रखें। और आपने सुना कि 16 सेंटर्स, नॉट इट्स ए ह्यूज टास्क, और भट्टी साहब ने अभी लाहौर में किया, पंजाब का पहला। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज ये है कि आप जब जाएं, जितने भी जानने वाले हैं सबको इनकरेज करें, अपने तौर पे अपने लेवल पे गवर्नमेंट से कहें कि ये टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, ये जानना हमें ज़रूरी है कि कौन से कैरियर्स हैं जो आपस में शादी न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सेफ जर्नी एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप फोटो लेना चाह रहे हैं राजा साहब। मरियम भाभी प्लीज।